A very good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. Today we are here for the Constitution Parishad. You would have seen that it is Samvidhan Parishad, and when it comes to Constitution, it comes to Dr. Bhimrao Ambedkar Sahab. We are here with the legends who had, in a short span of time, introduced us what is Constitution. We have the Honorable Sir, who is looking after Constitution, who had done so many judgments and citations, who had tried to overwhelm the people after knowing what is Constitution. Sir, we welcome you at Press Legend. I'm Latika Shami. May I know your good name, sir? I'm Advocate Shailesh Narnavre, practicing in the High Court and Supreme Court. Yes, sir. So, as we have heard about Constitution, wherever we think about Constitution, in the minds it is said that we are here with B.R. Ambedkar Sahab. In a short span of time, could you please let us know that what is Constitution in a very short time? Constitution, actually, from my point of view, you can understand in a few words. If you go through the preambles of the Constitution of India, the Indian Constitution is a sovereign one. Actually, for the first time, United Nations Organization has recognized India as a sovereign one and can represent. So the word sovereign, the socialist, the secular, the democratic and the republican, as well as the words thereafter, the justice, social, economical, political, liberty of thoughts, worship, belief, faith, and the fraternity of the individuals and the nation, dignity of individual and nation. So these points, the equality, this is the gist of the Constitution of India. And Constitution gives number of facilities to the Indian citizens like reservation, fundamental rights, Article 21, that is our right to life, includes right to livelihood, live with dignity, have the right of education, then the right of privacy. So number of articles which are enshrined in the Constitution are given to the common people, common citizen of India. And I think Constitution is giving us the great pride because it's a lengthiest Constitution and the great democracy of India. So that celebrates all over world, because this Constitution gives us the very eternal principles propounded by Lord Buddha. So we are here to celebrate the Constitution's 75 years and what the Baba Sahib has done for this new India with the help of the Constitution. So we want to enlighten the people, we want to create the awareness amongst the common people that you should know what the Constitution is, what the fundamental rights are, what is Article 21, what is reservation, what is Article 16, what is Article 15, what the Constitution has given to the women, to the children, what this Constitution has exactly given to the citizens. So this is very important because Constitution is a living document. It teaches us how the India should operate, how the India should govern. So that Constitution has given the very lesson to all the organs of the government, like legislative, judiciary, and executive. Yes. So every kind of principle, if you come to know, then we are enlightened that we are having such kind of great fundamental rights and the constitutional rights and the reservation and many more. So all the aspects of life are covered in the Constitution. Yes. So you have very briefly, enacted, and definitely my viewers, definitely they got to know what is Constitution. But another question is, as you said, that now we are not going to be said as a Dalit. Then how we will be pronounced when it comes to community? So far as this Dalit word is concerned, when there was no Constitution of India, at that time when the society was struggling, at that time not politically but socially this word was used by a number of the leaders, and that was that was the hour of time that was needed at that time because there was no recognition. As soon as the Constitution came into picture, came into force, then this word is nowhere mentioned in the Constitution of India. Dr. Baba Sahib Ambedkar has opposed this word
in his one of the writing and speeches of Dr. B.R. Ambedkar. And this Dalit word is creating some sort of very inferiority complexes, as if ki you are higher, I am the lower, you are having the great facilities and we are not having the great facilities, and we can do only those all the menial type of works. So this Varna Ashram, this is really dangerous to the Indian society, Varna Ashram and casteism. So this word Dalit is not our identity. The identity is our constitution, is our identity. Dalit word is only for the sake of pronouncing at that time when there was no constitution. So I think we should not call ourselves or label ourselves as Dalit, because this is against the dignity of individual and against Article 14. Another question, sir. There are certain communities, as we says, that some of the members, the guest has even said कि जो निचली जाति के लोग थे, अभी भी there are certain communities like Mangarodi. This community is suffering and they don't have their caste certificates, they don't have their validities, they don't have their Aadhaar, or even in their PAN cards also available. They are living a life like Banjaras. So is this honorable authority who is practicing in High Court will do any PIL or something to lead the Honorable Chief Minister of Maharashtra to look into this Mangarodi Samaj also simultaneously for their rights, so that they can make their caste certificates, they can make their validities, that children can prolong in future, that children can educate themselves? This is really a very relevant and burning question, and I am really very glad it's not mandatory in the Act or in the Constitution to produce the documents prior to 1950. It's not mandatory at all. So it's a arbitrary act of the authorities which are saying that no, you must produce. It's not a must. It's not must. If you are not having the documents prior to 1950, and whatever the documents you are having after 1950, on the basis of that, your caste claim can be decided, the caste certificate can be issued. Yes. So there are judgments of the Honorable High Court as well as Supreme Court. Supreme Court says in the case of Anand versus Scrutiny Committee that the recent generation, it's not necessary that they should know the language of tribal, they should know the culture, they should adopt those all the rituals, etc. Because they are migrated from the village to the urban areas or to the metropolitan cities. So it's not necessary that they should know everything. So if the documents are not available, still that person, if is a genuine one on the basis of the those all anthropological traits, then the caste certificate can be issued, the validity certificate can be issued. So there are judgments of the Honorable Supreme Court and High Court which deals with this issue, already settled this issue. That is not mandatory. That is not mandatory. Not mandatory to produce the documents prior to 1950. Okay. So definitely Mangarodi Samaj, if they are listening to me, I think for better knowledge of the constitution and for the remedy how to work out to get the caste certificate, I think you should approach the honorable authority, High Court lawyers, sir. They will definitely let you know how to proceed further with the applications, or if you want to file PIL or whatever it is, the remedy is with the sir. Thank you, sir, for giving us time. Thank you very much. We wish you a very, very happy birthday, sir. And as a senior journalist, I really greet you from Press Legend 24. I really wish you many, many years ahead. Thank you. Thank you. Sir, as a senior journalist, as I ask about Mangarodi, what is your point of view to give applications to the collectors or to the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, sir, as we had a word lastly on the last topic that you are going to give some applications to the honorable authorities? Just I attended that program, Mangarodi, at Nagpur. When I came to the point that the Mangarodi is running very suffer from the last so many years, and so that the Mangarodi, they are suffering from so many problems. They have no Aadhaar card, they have no PAN card, and they have no ration card. This type of condition, if we are going to know about the government is also fail to produce the document to the Mangarodi. Government should attend all these things.
That the moral duty to government to produce the certificate because they are the Nagrik, they are the citizen, Yes. they are the citizen of India. They born in India. So why government is taking this type of step regarding this caste? Because all the castes belongs to the SC, ST, OBC, whatever it may be, but सब government must show, government must go through the Constitution of India. Yes. So as per sir says that government must go through the Constitution of India book, and definitely, as I already stated in my last interviews, that every family should have one book. Rather than religion, we follow Islam, we follow Christianity, we follow Hinduism, but Constitution of India is a book every family, every child should know from, like when you wake up in the morning, you should at least go through one page of Constitution so that you should know the articles as well. But when it comes to getting justice, when we even have Constitution, we are not having justice. Why so? Do Dr. B.R. Ambedkar sir has to again come back and again start fighting for the justice? As sir says, Dalit word is not being used right now, but people still says Dalit because it will take some time to erase this word from the constitutional well-being, you can say, from the constitutional things which we says. We have another person who is well settled. Sir, Deepchand Shinde sir, we welcome you at Press Legend. What you say about Constitution, as we see that Dr. Vipin Itinkar didn't make up. We have seen that CP didn't make up due to some of the work he was busy with. But their prayers and their blessings are with us. But when it comes to Constitution, what you say about the different jatis which has not yet been added in the constitutional rights, the demands which you all are seeking, you are not getting it. What are the remedies? Again, I'm asking, what are the remedies? See, talking and stating the things is not my cup of tea. My cup of tea is, will you going to take any action for the betterment of society when it comes to Dr. B.R. Ambedkar sir? Because he fought for us. My viewers should know Dr. B.R. Ambedkar sir was an economist, he was a jurist, he was a law minister, he was heading the constitution, right? He was into drafting committee, and we are all members of that constitution. So what is you says? हमारी जो परिषद हुई है उसका नाम ही है कि भारत को, आजाद भारत को संविधान ने क्या दिया है। तो यहाँ पर जो विषय निकले हैं, सभी वक्ताओं ने ये कहा गया है कि अम्बेडकरी विचारधारा वाले ही लोग ये इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें शामिल होते हैं। दूसरों को इसकी जरूरत महसूस ही नहीं होती, इसलिए शामिल नहीं होते। जिनको पहले ऑलरेडी बहुत सारी सुविधा मिल चुकी है, जिनका पेट भरा है, उनको खाने को दो, उनको खाना अच्छा नहीं लगता, चाहे आप सोने का खाना दो। लेकिन जो हजारों सालों से भूखे हैं, हम स्वाभिमान के भूखे थे, हम स्वाभिमान से जीना चाहते थे, तो हमें ऐसे ही हमारी पीढ़ी के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और आने वाली हमारी जनरेशन को ये दिखाना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं दिखाएंगे ना, तो जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों की स्थिति थी, वो हमारे वंशजों की स्थिति रहेगी। जी जी, तो जो हमारी स्थिति, हमारे वंशजों की स्थिति थी, वो आज हमारी स्थिति रहेगी, ऐसा सर का कहना है। इसीलिए अभी समय है कि हम बुक्स पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, और हमारे साथ लर्नेड एडवोकेट्स हैं, टाइम लीजिए, उनके पास जाइए, उनसे सीखिए और उनसे ये पूछिए कि सर अभी मैं मेरे न्याय के लिए क्या कर सकता हूँ। सर, 2 वर्ड आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में भागवत जी लांडगे साहब को विशेष शुभकामना। बेसिक मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलना चाहूंगा, मेरे लीगल सर भी है पेटेंट। ये जानना बहुत जरूरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड्स पे कि जब देश ड्यूरिंग द मिडिवल, बिफोर द एंशिएंट टाइम क्या था, राजशाही जो था, उसमें मैं खुल करके बोलना चाहूंगा जो हमारे जनता तक हमारी बात जानी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में कई बार वो समझ नहीं पाते। तो एक प्लेस था प्रजा के लिए कि बस एक स्लेवरिटी सिस्टम में जीना है, उसमें चतुर्वर्ण व्यवस्था, फिर जाति, फिर उपजातियां, इन सबको इरेडिकेशन ऑफ द इनहेलिटेशन ऑफ द कास्टिज्म करते हैं बाबा साहेब। तो कितनी बड़ी चीज जो दी जाती है बोधिसत्व के उस तत्व को, अष्टांग मार्ग और पंचशील सिद्धांत जो है कि जियो और जीने दो, और उसके अंतर्गत जो प्लेस था, जो कभी कभी रिलीफ के रूप में वो अधिकार मिल जाते थे, या कभी पेट भर खाना मिलता था, नहीं तो ऐसे बेकारी लोग करते थे, वो सभी जो प्लेस थे उसको पहले उन्होंने जो है
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशनल को उन्होंने फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट किया. दैट इज द बिगेस्ट डॉक्ट्राइन एंड जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द यूनिवर्सल राइट एज वेल एज द ड्यूटी. तो जो हमको अधिकार दिए गए हैं उस अधिकारों में इतनी बड़ी ताकत है कि उसका उपयोग करके और उसको बाबा साहब ने सिंथेसाइज किया. एडल्ट जो इलेक्शन का राइट दिया उन्होंने कि हर कोई जो 18 साल के ऊपर है विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल राइट, इक्वल 1 वोट टू द प्राइम मिनिस्टर, इक्वल 1 वोट टू द लास्ट सिविलियन ऑफ इंडिया. तो जो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेज है वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज द टैग लाइन ब्रह्मास्त्र ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वी आर द इक्वली फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. और ये हमको जो फंडामेंटल राइट मिला उसी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत हमको जो है रिजर्वेशन का ये है. तो रिजर्वेशन इज अ फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट विल बी नेवर टू बी एडवर्सली अफेक्ट टू द एनी राइट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनी सोसाइटी. ठीक है. तो ये जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं राइट का, इसका बैलेंसिंग है फंडामेंटल ड्यूटी से. तो हमें जैसे जैसे अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना है, हमें अपने ड्यूटी के प्रति अवेयर होते हुए सीखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा. लेकिन इसमें जो नई जनरेशन है हमारी, क्योंकि आज की जनरेशन शायद वो चीज नहीं देखी है जो हमारे फोर फादर्स इन लोगों ने स्ट्रगल करके देखा था. क्योंकि उसे कहीं कहीं एक प्रकार का मीडिया तंत्र का उपयोग करके, उसमें अच्छे और बुरे दोनों साइड ऑफ मीडिया हैं, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाया जा रहा है. और उसी का नतीजा ईवीएम, क्योंकि इंडिया के ईवीएम में हमारी जो लीगल फेटर्निटी स्मिता कामडे मैडम है, उन सबके साथ, विलास राउत सर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं. तो ईवीएम जो है इट इज आर्टिफिशियल टूल्स हाउ टू टेम्पर योर वोटिंग राइट एंड हाउ टू अफेक्ट फाइनली द पॉलिसी मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट. हाउ टू, यानी पता भी नहीं चलेगा अपने को कि संविधान के अंतर्गत उन्होंने पूरी ओनरशिप भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट. आणि अशा अमृत महोत्सवी हा जो काळ आहे तो फार सुंदर काळ असा मानला गेलेला आहे. संविधान जागरची संपूर्ण टीम या ठिकाणी आलेली, मी सर त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आहे. त्यांनी प्लीज या ठिकाणी स्टेजवर येऊन आपलं त्या परफॉर्मन्सच्या संदर्भामध्ये तयारी करावी. लेकिन अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो संविधान के जो मौलिक अधिकार है, जो संविधान भारत के हर वो नागरिक को एश्योर करता है, गारंटी देता है, 100% गारंटी देता है उसके हक और अधिकारों के बारे में, वो कहीं पर भी मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. और ऐसे समय में अगर हक और अधिकार जिस किताब में, जिस ईमानदार दस्तावेज में नमूद है और सारे भारतीय आश्वस्त है इस ईमानदार दस्तावेज के संदर्भ में, तो ऐसे वक्त में उस अधिकारों का हनन होना, उस पर अन्याय अत्याचारों की बात रोजमर्रा की जिंदगी में होना, ये बड़ा ही दुखद है. महिला बनी शोषण मुक्त किया महिला को
आई, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश की महिला बनी, स्त्रीजनों का सम्मान उन्होंने हटाया, राजशाही और जातिवाद को उन्होंने हटाया, गरीब अमीर की थाली को भी उन्होंने हटाया, मौलिक अधिकार दिए सभी को एकता में लाया, अधिकार देकर सभी जनों को देश की शान, जीवन आईना संविधान है, जीवन आईना सभी भारतीयों की है ये संहिता। संविधान प्रास्ताविक सुरू करेंगे. सुरू कर. आम्ही भारताचे लोक भारताचे सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत. जय भारत. मैं जय भारत कहूंगा, आप जय संविधान कहना. जय भारत. जय भारत. जय संविधान. जय संविधान. जय संविधान. प्लीज बैठ. सरकार से मिलकर जाने में वो कामयाब हो गई है. एक जोरदार तालियां होनी चाहिए. जोरदार तालियां. अखिलेश मेश्राम जी और बाला साहेब, सम्माननीय बाला साहेब फेरे जी महोदय. परिषद का आयोजन यहाँ पर प्रखरता से किया गया है. संख्या भले ही हमें यहाँ पर कम लग रही हो, लेकिन सही मायने में यहाँ जितने जो लोग बैठे हैं सही मायने में वो संविधान के प्रति सजग और अपने अधिकार. जय भारत. जय संविधान. जय रहा पूरा है, तो हम सभी लोगों ने उसको आबादी कैसा रखना है उसके ऊपर जाने अप्रोच किया है. आप सुनेंगे. संविधान के प्रति देकर भी होगा, ऐसे सभी लोगों से मेरी विनती है. और एक जोरदार तालियां होनी चाहिए. जोरदार तालियां. लांडगे साहब प्रखर अम्बेडकरवादी. कोई भी किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार होते हुए अगर दिख रहा है तो पहले प्रथम वो अपनी लेखनी के माध्यम से उसको उजागर करते हैं, और कभी भी अन्याय होते हुए वो देख नहीं पाते, वो अपने लेखनी के माध्यम से की महिला बनी, शोषण मुक्त किया महिला को बराबरी
आई, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश की महिला बनी, स्त्रीजनों का सम्मान। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण या रंग का अंतर लाडके कहता हूं कि वे राकेश धारगावी जी का स्वागत रहेगा। आता बहुत ही जबरदस्त चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत। राकेश धारगावी जी का स्वागत करेंगे। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। राकेश भार्गवी जी निरंतर ऐसे जबरदस्त कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। इसी के पश्चात आणि या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेलं संविधान हे कितपत योग्य आहे हे जनतेला कळलं पाहिजे, हा या मागचा उद्देश आहे। आणि म्हणून आजच्या या संविधान परिषदेत भारतीय संविधानाने स्वतंत्र भारताला काय दिले हा माझा विषय आहे। इथं जी वक्ते आहेत बोलणारी ती या विषयावर प्रकाश टाकतीलच। आणि आपण शुद्ध नागरिक आहात, शुद्ध जनता आहात, आपण ही मुळाची परिषद काहीतरी घेऊन जावं अशी मी तुम्हाला विनंती करतो आणि तसा आत्मविश्वासही व्यक्त करतो। बंधूंनो, आजचा दिवस हा पौर्णिमेचा दिवस। बिहार राज्यामध्ये महाबोधी विहार आहे, तिथं वर्षानुवर्षे हिंदू धर्मीय लोकांनी कब्जा केलेला आहे आणि त्या कब्जावर भारतीय बौद्धाच्यानुसार बुद्धांचं चरित्र समोर आलं पाहिजे आणि त्या ठिकाणी बौद्धमय वातावरण आणि बौद्ध पद्धतीनं सगळं काही चाललं पाहिजे या नीतीसाठी आज तिथं उपोषण सुरू आहे बिहार राज्याच्या गया बौद्ध गयामध्ये। तेव्हा हे स्मरण आहे माझ्याकडून, कारण की बऱ्याचशा लोकांना माहिती नसेल तिथं काय होतं म्हणून, कारण की ते आपलं बौद्धिक विचार महत्व आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी आपण सर्वांना मी आठवण करून घेतो की आजचा हा महापौर्णिमेचा दिवस असल्यामुळे जिथे जिथं बौद्धमय वातावरण तयार व्हायचं ते व्हायला पाहिजे। मित्र हो, या संविधान परिषदेला कार्यक्रमाचे उद्घाटन म्हणून पूज्य भंते ज्ञानज्योती महादेव येणार होते। धन्यवाद। असे व्यक्तिमत्व मिळणं की ज्या पतधोरणाला धरून जनतेचा विश्वास संपादन करणं हे काही लहान काम नाही। आज आपण सगळे सुशिक्षित आहोत, सगळ्यांना कळतंय। सध्या ते मला त्यांनी म्हटलं की मला 2 मिनिटात कळवा की दिल्ली नियोजन कसं आहे, तुमचं स्वतः मंडळ कसं आहे। आता त्यांना मी फोन करून सांगतो की तुम्ही सर 10-15 मिनिटांमध्ये इथे या, आम्ही तुम्हाला 20 मिनिटांमध्ये सोडून देऊ, तुमचं स्वागत सत्कार करू, कारण की तुम्हाला राष्ट्रपती पदक मिळालेलं आहे। ही आपल्या नागपूर शहरासाठी फार मोठी स्वाभिमानाची गोष्ट आहे आणि म्हणून त्यांनी आमचं हे स्वीकारलंय, निवेदन स्वीकारलं। त्यांनी पीएला सांगितलं माझ्या समोर, त्यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये आणि त्यांच्या कम्प्युटरमध्ये नोंद केली की नाही या कार्यक्रमात मला जायचं आहे, म्हणून ते चौकशी करतात आणि आता ते थोड्या वेळात तिथे येतील। माझं नाव थांबून टाका, त्यांनी फोटो दिला, नाव छापलं। पण अचानक परवा आम्ही जेव्हा गेलो त्यांच्या कार्यालयात तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं कि बोले मुख्यमंत्री के सचिवालय से फोन आया और वहां जाना बहुत ही अर्जेंट है, इसीलिए मैं इस कार्यक्रम में नहीं आ सका। मैं कोशिश करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया और अभी भी कर रहे हैं।
जो माजी उपराष्ट्रपति जगदेव राम जी, उनकी वो संस्था चला रहे हैं, भारतीय दलित साहित्य अकादमी। ये साहित्य अकादमी ऐसी है कि इसमें बहुत सारे लोगों को उनके कार्य तरीके पे प्रोत्साहन किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। वो सम्मान के लायक है नहीं है वो खुद तय करेंगे शेंडे साहब। इसलिए उनकी अपनी कैपेसिटी है, उनको अपनी परख है कि कौन कैसा इंसान है और किसको क्या देना है और किस योग्य है। तो ऐसे इंसान भी हमारे साथ है। मैं डॉक्टर दीपक शेंडे साहब का हृदय दिल से स्वागत करता हूँ। इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि आप है तो हमारी शान है, क्योंकि आपने भारतीय वन सेवा में काम किया है और आप अभी रिटायर है। तो ये हमारा ऐसा मंच है। मेरी अर्धांगिनी भी आपके साथ सामने बैठी है, सुमन लांडे, उसके कारण ही हम यहाँ तक आ पाए हैं। जब वो खाना बनाएंगी खिलाएंगी कभी हम जिंदा रहेंगे। तो इसलिए मैं ये स्टेज का परिचय कर दिया हूँ और अभी करा जाता ये संकल्प मना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी भारत आजाद हुआ है और भारत में संविधान लागू हो चुका है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया, किसी माँ के लागू नहीं बनाया। वो ऐसी प्रेरणा है इस देश के लिए कि कितने इन्होंने गढ़ाए, लेकिन बाबा साहब के संविधान को हिला नहीं सके। ऐसे मैं उन्हें विनती करता हूँ। भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त BR भागवत असोसिएट्स द्वारा आयोजित संविधान परिषद या परिषदेत उपस्थित मान्यवर, कार्यक्रमाचे उद्घाटक पूज्य भंते ज्ञानज्योती महाथेरोजी, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट महेंद्र बनसोड साहेब, अध्यक्ष सम्राट अशोक नागरी सहकारी पतसंस्था, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर रविंद्र सिंगल, भापोसे पुलिस आयुक्त नागपुर शहर, डॉक्टर विपिन इटनकर IAS जिल्हाधिकारी नागपुर, एडवोकेट रोशन बागड़े अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन नागपुर, एडवोकेट शैलेश नारनवरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वकील, एडवोकेट स्मिताताई कांबड़े हाई कोर्ट वकील तथा राष्ट्रीय समन्वयक समता सैनिक दल युद्ध लीडर, नागेश चौधरी साहब संपादक बहुजन संघर्ष परीक्षक, हमारे मित्र डॉक्टर दीपचंद सेंडे भारतीय दलित साहित्य अकादमी महाराष्ट्र अध्यक्ष, आयोजक भागवत लांडगे साहब ज्येष्ठ पत्रकार व लेखक, सचिव दीक्षा भूमि बचाव संघर्ष समिति, वैसे ही राकेश धारगावे अध्यक्ष दीक्षा भूमि बचाव संघर्ष समिति, उपस्थित माता बहनों भाइयों, आज संविधान परिषद में मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने भारत के लिए संविधान लिखा है और वो संविधान के माध्यम से बहुजन समाज आज प्रगति पथ पर है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है मतदान करने का, संविधान ने हमें अधिकार दिया है शिक्षा प्रणाली पूर्ण करने का। शिक्षा प्रणाली एक ऐसा माध्यम है कि आदमी नागरिक अपना शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो अपना मुकाम हासिल कर सकता है।
महाराष्ट्र और इस भारत के रचयिता छत्रपति शिवाजी महाराज, शिक्षण का अधिकार देने वाले क्रांति ज्योति ज्योतिराव फुले, स्त्री मुक्ति के शाहू महाराज और आप हम सबको मतदान और अधिकार देने वाले परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम में प्रमुखता से हमारे बीच में पधारने वाले हैं इस शहर के पुलिस कमिश्नर माननीय सिंघल साहब, आज के उद्घाटक थे, यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए ऐसे पूज्य भंते ज्ञान ज्योति महादेव साहब, और आज के इस कार्यक्रम में प्रमुखता से और जिनके अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है ऐसे सम्राट अशोक नागरिक सहकारी पत्र संस्था के संचालक एडवोकेट महेंद्र बंसोड़ साहब, कीर्तनकर साहब नहीं आने वाले ऐसा बताया। हमारे यहाँ पर नागपुर में काका ने बताया 5000 है, मेरे नॉलेज में 8500 या उसके ऊपर करीब है एडवोकेट। उन सभी के, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, सेशन के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, सभी के अध्यक्ष हमारे यहाँ बैठे हैं। ऐसे हमारे एडवोकेट रोशन बागड़े साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील, एक अच्छे वक्ता यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। हमारे बड़े बंधु एडवोकेट शैलेश जी नारनवरे साहब, हमारी ताई जिन्होंने संपूर्ण भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसके खिलाफ जो आंदोलन चलाया और संपूर्ण भारत को हिला के रख दिया, ऐसे हमारी एडवोकेट स्मिताताई कांबड़े मैडम, आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मेरे काका, मैंने जिनको अपना गुरु का स्थान दिया हो, ऐसे भागवत लाडके साहब, मेरे मित्र दीक्षा भूमि बचाओ आंदोलन के संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश भार्गवे साहब, और इस कार्यक्रम को बहुत ही सुचारू रूप से जो लेके चल रहे हैं ऐसे हमारे मित्र विश्वासराव पाटिल साहब। आज संविधान का 75वां वर्ष चल रहा है। हमने 2 साल पहले आजादी का अमृत वर्ष 75वां वर्ष मनाया था और उसके 2-2.5 साल में ही हमें संविधान मिला था। काका ने मुझे कहीं सुना, लाड़के काका ने मुझे कहीं सुना था, कहीं भी मैं बोल रहा था, उन्होंने सुने, मेरे से वार्तालाप किए, और वार्तालाप करने के बाद में पता नहीं उनके मन में क्या आया कि भारत को अगर संविधान नहीं मिला होता, आजाद भारत को, तो अपना भारत कौन से स्वरूप में होता, ये परिकल्पना उनके मन में आई। इसलिए उन्होंने अपनी ओर से सभी के, आप हमारे और सभी के सहयोग से, लेकिन उन्होंने खुद अपनी ओर से आजाद भारत को संविधान ने क्या दिया इस विषय पर एक बहुत ही अच्छा, एक वैचारिक प्रबोधनात्मक कार्यक्रम इस इन्वेंशन हॉल में, कन्वेंशन हॉल में रखा। भारत की धरती को अगर आप खोद के भी देखेंगे ना, तो वहां पर भी 2500 साल और उसके पहले का इतिहास मिलता है। सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई प्रतिकृतियां, शिलालेख हमें मिलते हैं, और उस शिलालेख से मिला हुआ अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बनता है। और अगर उसी राष्ट्रीय चिन्ह के हिसाब से हमारा देश चलता है, हमारा देश इस संविधान से चलता है। ये संविधान इतनी आसानी से नहीं आया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय उनको लगा, और उनके साथ में वे अकेले नहीं थे, 7 लोग उनके ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। इस देश की संसद ने उनको प्रांतीय लोकसभा, प्रांतीय विधान संसद समिति और केंद्रीय संसद समिति, ऐसी समितियां थी। दलित पिछड़ों की एक समिति थी,
अल्पसंख्यकों की एक समिति थी, बहुत सारी समितियां थी, लेकिन यहाँ के सांसदों ने, उस समय के संविधान सभा के सांसदों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को किसी भी संविधान में नहीं लिया। और सबसे छोटी जो संविधान समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, मैं पानी पी लूंगा, ड्राफ्टिंग कमेटी, उस कमेटी में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लिखने का काम और उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। किसी को उस कमेटी में जो मेंबर थे, किसी के पास में विदेश मंत्रालय था, वो विदेशों में जाना आना जहाँ शुरू था उनका, वे उस ड्राफ्टिंग समिति को ज्यादा समय नहीं दे पाए। मैं नाम का उल्लेख लेना यहाँ महत्वपूर्ण नहीं समझता। किसी की तबीयत खराब थी, हो सकता है वो बहाना था, लेकिन किसी की तबीयत खराब थी, उन्होंने वो समय नहीं दिया। किसी के पास में संसद के या संविधान सभा के बहुत सारे कार्य थे, उन्होंने भी वो समय नहीं दे पाए। उनको सिर्फ किसी राव ने थोड़ा समय दे पाए, अन्यथा लिखने का काम, पढ़ने का काम, संवाद करने का काम और उसे तय करने का काम भी अगर वो किया है तो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिला, करना पड़ा। और मैं बताया था कि ये संविधान समिति इतने आसानी से नहीं बनी। आज जहां बांग्लादेश है, जहां पाकिस्तान हुआ करता था पहले और भारत आजाद के पहले, वहां पर हमारा भारत था, पूर्वी भारत, बंगाल। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस बंगाल से संविधान सभा में गए थे। हमारे मुंबई से तो पहले तो हार चुके थे वे, उनको संविधान सभा में जाने के लिए वहां पर जोगेंद्रनाथ मंडल ने आमंत्रित किया। तो जोगेंद्रनाथ मंडल संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुन के आए थे। उन्होंने ये सोचा कि संविधान सभा में जाने लायक अगर कोई इंसान है, कोई द्वैत स्वरूप अगर कोई इंसान है, उसे पूर्ण कर सकता है। इतने बड़े देश का संविधान अगर कोई कर सकता है तो वो केवल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कर सकते हैं। उनको लगा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सदस्यता का सदस्यत्व था। और जज अंदर बैठते थे, बीच में एक मीडिएटर होता था और वो जाके उस दलित आदमी से पूछता था कि तुमने वो देखा क्या। वो आके बताते थे जज को कि जज साहब ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। देखिए कितनी विषम परिस्थिति थी दलितों की। दलितों के साथ में क्या हो रहा था यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विषय है संविधान ने क्या दिया। ताई बैठी है, महिला है, हमारे लिए सम्मानजनक है। महिला चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात समाज की हो, संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, इस महिला को अधिकार दिया है कि वो अगर प्रसूत होती है तो उसे 3 दिन की छुट्टी नहीं, उसे 2 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए। यह अधिकार हमें संविधान देता है। यह संविधान यह अधिकार देता है कि हम बोल सके, सरकार के खिलाफ में आवाज उठा सके। आर्टिकल 13 में वो तो बहुत अच्छे गाढ़े अभ्यासक यहाँ बैठे हैं, मैं तो ऊपर की बातें बताऊंगा कि अगर मुझे अब देश के बारे में कुछ बोलना है, मुझे अपने समाज के बारे में किसी को कुछ बोलना है, बताना है, तो ये अधिकार भी हमें नहीं था इस देश की समाज व्यवस्था में। हमें यह अधिकार अगर कहीं मिलता है तो वो 1949 को मिला हुआ और 1950 26 जनवरी को लागू हुआ संविधान ही देता है। अन्यथा हमारी तो कोई विचार पूछ ही नहीं थी। उनके ऊपर में बोझ इतना था, उन्होंने अपने प्रकृति पे कभी ध्यान नहीं दिया। 18 घंटे पढ़ाई करना और 2 ब्रेड, 1 कप दूध, 1 कप चाय में पूरा दिन निकालना, प्रकृति के लिए यह ठीक नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन उनकी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए यह किया। संविधान हमको क्या देता है? आज भी कुंभ में मेले लगे हुए हैं, बिन बुलाए लोग जाते हैं, वहां पर भी बहुत श्रेणियां हैं। पहले नागा साधु नहाएंगे, उसके बाद में दूसरे साधु नहाएंगे, उसके बाद में तीसरे साधु नहाएंगे, चौथे साधु नहाएंगे, कौन कौन साधु नहाएंगे मालूम नहीं। उसके बाद में दूसरे जा, और बाकी के जो पिछड़े लोग हैं, जिन उनकी नजर में जो पिछड़े लोग हैं, बाद में नहाएंगे। पता नहीं लोग वहां पर अपने नंबर से क्यों जाना चाहते हैं, और नहाने से पता नहीं क्या होता है। इन सब बातों का विश्लेषण अगर कहीं है तो संविधान में मिलता है।
आज हम जिस जानवर को जानवर तुल्य, अगर इंसान को छोड़, आदमी के, क्रिश्चियन आदमी के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो, उसके बच्चा पैदा होने के पहले उनका धर्म ग्रंथ उनके संरक्षण में खड़ा होता है कि यही पढ़ना है और इसी पर चलना है। लेकिन भारत देश का कोई भी बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, वो बच्चा पैदा होगा तब उसके लिए इस देश का संविधान सबसे पहला सुरक्षा कवच बना हुआ है। संविधान हमें यह अधिकार देता है। एक चांगली चर्चा होत आहे. मित्रांनो, माझा प्रश्न थोडा संभ्रम निर्माण करणार आहे. मी स्मिताताईला विचारू इच्छितो, त्या EVM अगेन्स्ट इंडिया हे सुद्धा चालवतात. तर मित्रांनो, आजपर्यंत मी जवळपास 45 वर्षापासनं मी सामाजिक लढ्यामध्ये आहे. त्यांच्यापासनं दीक्षा शेंडे मला चांगलं ओळखतात. तो मित्रांनो, माझ्या मनामध्ये एक संभ्रम आहे की ही जे संविधान परिषद आहे, संविधानावर जेवढे काही व्याख्यान होतात, जेवढ्या काही परिषदा होतात, त्या बहुतेक आंबेडकरी जनता घेतात मोठ्या प्रमाणात. नाही, आंबेडकरी जनता म्हटलं की ते बौद्ध समाज आहे. बाकीचे समाज तर तो बौद्ध समाज आहे. आणि त्यामध्ये OBC, ST आणि ENT हे सहभागी होत नाही मोठ्या संख्येने. मात्र एक माझ्या लक्षात आलं की जेव्हा जेव्हा आपल्या माणसावर लोक येतात, तर मुस्लिम समाजाचा असो की तुम्ही टीका करत नाही, परंतु इथे भाषण देऊन आपलेच लोक जास्तीत जास्त श्रोते असतात, त्यांचे फार कमी असतात. अशा वेळी यांना आपण नेते बनवतो. काही दिवस हे आपले नेते बनता, इथं भाषण देऊन मोठे होतात आणि लगेच कुठल्या तरी पार्टीमध्ये निघून जातात. तुम्हाला आता काही अनुभव आले असतील. संविधान चौकामध्ये तुम्ही जे EVM अगेन्स्ट इंडिया घेत होते, त्यापैकी एक मोठा नेता झाला, कुठेतरी राष्ट्रवादीमध्ये गेला आणि आपले जागरूक ठिकाणी हजारो कार्यक्रम त्याचे झालेले आहेत. असे अनेक नेते मी बघितलेले आहेत आजपर्यंत. तर मित्रांनो, ही SC, ST, OBC यांना संविधानाच्या ह्या म्हणजे मालिकेमध्ये आपण आणण्यासाठी फक्त आपणच प्रयत्न केला नाही, त्या समाजातल्या लोकांनी त्या ठिकाणी संविधानाच्या रॅली तयार केल्या पाहिजे, संविधानाची परिषदा घेतल्या पाहिजे. आणि होत नाही, आपल्या भरोश्यावर फक्त आपण संविधान वाचवू शकत नाही असं मला वाटतं. यावर बोला. खूपच गंभीर आणि महत्वपूर्ण प्रश्न दादाने विचारलेला आहे. त्याचं उत्तर एका शब्दात द्यायचं झालं तर असं आहे दादा, की गेले 75 वर्ष जसं या ठिकाणी आपण स्वतंत्र दिवस 26 जानेवारी म्हणजे त्या म्हणतो की त्या दिवशी संविधान अंमलात आले, गणराज्य म्हणतो, बरोबर. गेल्या 75 वर्षापासून हे जे आहे हा म्हणजे संविधानाचा गौरव वास्तविक पाहताना तमाम देशातील जनतेने करायला हवा होता, पण तो होऊ नये. नाहीतर गणराज्य सोबतच संविधान राज्य हा शब्द लावला असता, सरकारने लावला असता की नाही. जसं आपण गणराज्य म्हणतो, संविधान राज्य का म्हणतात नाही. मग ते बालवयापासूनच हे बीज येथील विद्यार्थ्यांमध्ये म्हणा, देशातील लोकांमध्ये ती कशी रुजल्या जाईल. आणि म्हणूनच यासाठी येथील शासन आणि प्रशासन देखील जबाबदार आहे. आपली जबाबदारी याच्यासाठी संविधान परिषदा घेणारा, जसे आजची ही परिषद, मी अनेक ठिकाणी संविधान परिषदेला जात असते. 26 नोव्हेंबर असो, 26 जानेवारी असो, संविधानाचं महत्त्व सांगत असते. अत्यंत महत्त्वपूर्ण त्यांनी प्रश्न केला की इथे ऐकणारा वर्ग म्हणजे आंबेडकरी समाज, म्हणजे तोच असतो आणि स्टेजवरती इतर लोक येतात, मोठे होऊन जातात, आपण त्यांना मोठं करतोय. दुसरा त्यांनी असा प्रश्न विचारला की इंडिया अगेन्स्ट EVMच्या माध्यमातून जे देशव्यापी आंदोलन इंडिया अगेन्स्ट EVM फोरमनी म्हणजे आपण सगळ्यांनी ते चालवलेलं आहे लगातार 2018 पासून, ते यासाठी चालवलेलं आहे कारण आपण फार चिंतन आणि अभ्यास केला याचा, आणि ते फक्त आपल्याच लोकांना घेऊन ते आंदोलन यशस्वी होणार नव्हतं. नाहीतर आम्ही तर पॉलिटिकल लोकांशी फोटो देखील काढणे पसंत करत नाही, विश्वासाला माहिती आहे. मग तिथे गडकरी येऊ, फडणवीस, आता 8 मार्चचा जो महिला दिन आहे तिथे मला विमेन एम्पॉवरमेंट अवॉर्ड जाईल. तुम्ही विमेन ऍक्टिव्हिस्ट आहात, महिलांवरती 100च्या वरती तुम्ही परिषदा घेतलेल्या आहेत महिलांवर, त्याच्यामुळे तुम्हाला देवेंद्र
चलो दोनों lawyers। और आप साथ में और ये स्पेशल ओकेजन में सर के ऑनर में मैं आप सभी के बिहाफ में ये कहना चाहता हूँ कि सर ने जो इस अवनी पर पृथ्वी पर इस जीवन में जो 73 इयर्स जो है दिए, बाबासाहेबांनी मोडकळीस आणून समतावादी संविधान दिलं आणि आज स्मिताताई सारख्या या शूरवीर नेत्री आज आपल्या समोर उभे आहेत ते बाबासाहेबांनी संविधान दिलं. जर भारताचे पंतप्रधान एक स्त्री होऊ शकते, महिला स्त्री इंदिरा गांधी झाले, त्याचबरोबर राष्ट्रपती पाटीलताई झालेल्या आहेत, या देशाच्या राष्ट्रपती आता द्रौपदी मुर्मू आहेत. भारतीय संविधानाची घोषणा आहे. म्हणजे स्त्रियाही राजपाटामध्ये सहभागी होऊ शकतात. ढोल गवार शूद्र पशु नारी हे सब ताडांचे अधिकारी स्त्रियांच्या उल्लेख आलेला आहे, मनुस्मृतीमध्ये नोंद आहे. तर यांना कुठलेच अधिकार नाही. भारतीय संविधान थोड्या वेळा थोडी रिफ्रेशमेंट. तर म्हणण्याचं तात्पर्य असं आहे की संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो और उसका यूज उसका वापर उसकी अंमलबजावनी नहीं होगी तो संविधान किस काम का नहीं है. गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या, नंतर तो पण जाईल. आज या गुलाम वर्गाने आपल्याला होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराची जाणीव झाली म्हणून हा समाजाने बंद केलेला आहे. असा 85% शूद्र म्हणजे या 15% वर्गांच्या हाताखाली हा 85 वर्ग लाचार गुलाम बहिष्कृत होता. त्या लाचार गुलाम बहिष्कृत वर्गाला न्याय देण्याचे कार्य 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताला जे संविधान बहाल केलं आणि 26 आता मला इतकं सांगायचं आहे की बाबासाहेबांनी जो आपल्याला संविधान दिलेलं आहे, आपल्या देशाला दिलेलं आहे, हा देश 1 अरब 40 करोड लोक बाबासाहेबांची ऋणी. किती तिथे भेदभाव असो, किती रेफर केलेलं आहे मी आपल्या पिटिशन मध्ये की कुठे बाबासाहेबांनी म्हटलेलं आहे की डोंट से युअरसेल्फ दलित. तर हा शब्द जो आहे हा एकदम अब्युसिव्ह शिवीगाळी करणारा शब्द आहे. हा म्हणजे डिरोगेटरी आहे, अपमानजनक आहे. यू आर नॉट दलित, यू आर ह्युमन बीइंग. डिग्निटी आहे. शेड्यूल कास्ट आहे तर काय झालं? दॅट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिझर्वेशन कॅनॉट बी कम्पेअर्ड विथ दिस वर्ड दलित. तर हायकोर्टाने जजमेंट माझ्या फेवरमध्ये दिलं. सेंट्रल गव्हर्नमेंटला डायरेक्शन दिले, स्टेट गव्हर्नमेंटला डायरेक्शन दिले की तुम्ही हा शब्द वापरू नका ऑफिशियल याच्यामध्ये, आणि मीडियाला डायरेक्शन दिलेले की तुम्ही जे आहे हे शब्द वापरायचं नाही, अदरवाईज सम ऍक्शन विल बी टेकन अगेन्स्ट यू. आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटने नोटिफिकेशन काढलं, तो नोटिफिकेशन आहे माझ्याकडे. स्टेट गव्हर्नमेंटने काढलेलं तो नोटिफिकेशन आहे. आणि हळूहळू कधी कधी आता जे आहे तो शब्द वापरतात लोक, हॅबिच्युअल झालेले आहेत, इतक्या लवकर जाणार नाही. पण खूप रिस्ट्रिक्शन आलेले आहेत. खूप सारे अवॉर्ड्स आणि स्कीम जे आहेत ते चेंज झालेले आहेत. दलित शब्द, दलित जे अवॉर्ड देतात, दलित वस्ती हे ते सर्व जे आहे हळूहळू गव्हर्नमेंट जे आहे त्यांना डिलीट करत आहे आणि हे झालं पाहिजे. सुप्रीम कोर्टामध्ये ते गेले काही लोक, सुप्रीम कोर्टाने रिजेक्ट करून टाकले. म्हणजे विजय आपला झाला, संविधानाचा झाला. संविधान काय देत आहे आपल्या भारत देशात? नाही, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट, देन यू आर ऑफ एनी रिलीजन. पुष्पगुच्छ मोमेंट और संविधान की प्रत समता सैनिक दल के माध्यम से ये गठित की गई. तथागत भगवान
भगवान गौतम बुद्ध, परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्रिवार वंदन करतो आणि संविधान परिषद मध्ये VR भागवत असोसिएट्स द्वारा आयोजित विषय भारतीय संविधानाने स्वतंत्र भारताला काय, इथे मला आमंत्रित केल्याबद्दल फार फार जे आहे ते आणि मी आभार व्यक्त करतो आणि दिलगिरी मागतो की मी उशीर झाला मला, कारण की आमच्या हायकोर्टामध्ये स्पोर्ट्स प्राइज डिस्ट्रीब्युशन्स होते आणि त्यामध्ये जे आहे मला चेसमध्ये ट्रॉफी मिळालेली. हे स्पोर्ट्स जे स्पिरिट असते त्यामध्येही आपलं इन्व्हॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन असणं मला असं वाटतं की गरजेचे आहे ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करायसाठी. तर खरोखरच जे आहे आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी की आपण सर्व जे आहे आतुरतेने वाट पाहत होतो आणि एकही क्षण व्यतीत न होता मला जे आहे ते आमंत्रित केलेलं आहे बोलायसाठी. विषय खूपच सेन्सिटिव्ह, गंभीर, संवेदनशील आणि खूप थॉट प्रोवोकिंग आहे, विचारमग्न करणार आहे. पण मी परमिशन घेतो की मी तीनही भाषामध्ये प्रयोग करणार आहे, कारण की आपल्या आजीबाई वगैरे सर्वांना मराठी समजते, काही लोकांना हिंदी समजते आणि काही लोक इंग्रजीमध्ये. तर तिन्ही भाषामध्ये इथे प्रयोग करेल मी. पण सर्वात आधी जे आहे मी भागवतजी लांडगे यांचे जे वाढदिवस आहे त्याबद्दल जे आहे खूप खूप जे यांना बधाई देतो. यांचे जे जीवनाचं जे कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे त्यांनी समाजाला, जे त्यांची बुद्धिमत्ता आहे, जे त्यांची क्रिएटिव्हिटी आहे आणि जे धडपड आहे समाजासाठी काहीतरी करायला पाहिजे निस्वार्थ भावाने, तर खरोखरच जे आहे अशी जे व्यक्तिमत्व आहे यांचा आपल्याला निधी आणि सत्कार करायला पाहिजे आजचे दिवस. मला आठवते की त्यांचा आणि माझा संपर्क एक खूप सुंदर पुस्तक होती, बुद्ध वचनों के अमृतकाल. ते ॲडव्होकेट संदेश भालेकर साहेबांनी तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगी कि तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा. तो इंसानियत को भी हमें याद रखना है और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने जो कार्य किया है हमारी कम्युनिटी के लिए, चाहे वो अब हम दलित तो नहीं कह सकते, लेकिन आज दलित से बढ़ के अगर उनका कोई ओहदा बन चुका है तो वो यही है कि हमें जय भीम का नारा लगाते हुए इस काम में आगे बढ़ते हुए लोगों की मदद भी करनी है और उनका नाम भी ऊंचा करना है. तो इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले. विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online. थैंक यू.